Hello and welcome to this special edition of The Outsider, coming to you from London. With me is the former President of Pakistan, General Pervez Musharraf, and the former Indian Foreign, Defence and Finance Minister, Jaswant Singh. Two men who dealt with each other at moments of high drama and conflict between their countries. But your Prime Minister, after weeks of heavy fighting, your Prime Minister, Nawaz Sharif, was summoned to Washington by Bill Clinton and, in your words, capitulated. Yes. Gave in. Clinton said, you take out your forces, you take out your freedom fighters or militants or terrorists, whatever you want to call them, and that's the end of it. And Nawaz Sharif said, saluted and said, okay. Yes. Well, how did you feel? Let down? Well, no, I wouldn't say that. He was the Prime Minister of the country. Yeah, but you had committed significant forces and suffered significant casualties. Well, we inflicted much more than we suffered. Although you never, in your book, I noticed you never gave away how many casualties Pakistan had suffered. Far fewer. But anyway, let's not get involved in how many casualties we suffered. But the issue was certainly that there was a military environment which was there at Kargil. And there was a political decision to be taken whether we withdraw or not to withdraw. That political decision was in the hands of the Prime Minister. So whatever decision he took... well, it wasn't in his hands. It was in Bill Clinton's hands, as it turned out, wasn't it? Because he ordered him what to do, and the President and the Prime Minister did as he was told. Yes, I don't think that the people of Pakistan were in line with that decision. With hindsight, you were in over your head, weren't you? I mean, whatever you thought you were doing in Kargil, it ended badly, didn't it? I don't... the withdrawal, yes. It was... I don't think that was in favor. I wouldn't have taken that decision. But, however, the Prime Minister took that decision to withdraw. Jaswant Singh, during the Kargil operation, did you ever doubt that you could contain Pakistan? No, did you wonder... you were both, at that point, you were both nuclear-armed states? No, there was no question as far as India is concerned. There was no question at all of two things. We will not cross the line of control, irrespective, which perhaps... You could have sent a missile across, couldn't you? No, we couldn't have across line of control. We didn't let our Air Force planes cross the line of control, which from the air it's impossible to tell. So therefore the question of employing nuclear weapons was out of the question totally. It was a very strict injunction placed on the armed forces by the Prime Minister. Line of control is not to be crossed. In Pakistan. Well, before I answer this question, I would be remiss if I didn't make a final comment on Kargil. My personal view, a military victory was converted into a political defeat. That is what I want to say. That is my assessment. You never saw any military victory as far as Pakistan is concerned, presumably. Well, suffice it to say that you disagree with that comment. Well, I can't agree with Yes, that. I understand, but... We knew that though tactically we had been surprised, strategically the situation had turned adverse for Pakistan, and it was only a question of time before we evict the occupation. Was this one thing that America did well? I mean, with all your criticism of the North Atlantic Treaty Organization, this was something he did well, did it? America did a good job that day. Yes, yeah? but not because by telling Nawaz Sharif to get out of Kargil. No. Pakistan would not have vacated only because President Clinton said so. You can't bring yourself to say the Americans did a good thing on this occasion. They did a sensible thing. शुजात हुसैन साहब नवाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन था वो क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब लंगर सुर्ख हो गई थी उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि चलो बाद में मीटिंग करेंगे
अच्छा, यानी चौधरी शुजात साहब, आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान कारगिल पे जो कुछ हो रहा था उससे आगाह थे या नहीं थे? वो तो परवेज मुशर्रफ साहब ने साबित कर दिया ना कि 6 दफा तो उन्होंने बताया था। और आपको मुशर्रफ साहब की उन बातों पर यकीन था? आपके ख्याल में मुशर्रफ, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग थे ना, नवाज शरीफ साहब आप भी कहते हैं नहीं पता था और मुशर्रफ साहब कहते हैं बता था सब, आपके ख्याल में मालूम था नवाज शरीफ साहब को? सही बात तो ये है कि उन्होंने 6 दफा साबित किया था, और डेट्स के साथ और वक्त के साथ उन्होंने साबित किया और लिखा हुआ था उनके पास, तैयारी करके आए हुए थे। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा चौधरी साहब कि फिर उस मीटिंग में वापसी के हवाले से यानी क्या बात हुई? विड्रॉल के मामले में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन बहरहाल वो मुशर्रफ साहब ने जो कहा है वो उसे अगर आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाएं तो वो बात सही निकल जाती है। और मुशर्रफ साहब ने फिर ये भी कहा, आई एम सॉरी अगर आप ये बात कह चुके हो तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ बिकॉज आई कुडंट गेट यू, मैं सुन नहीं पाया, कि फिर आपने और राजा जफर उल हक साहब ने ये कहा कि हमें विथड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है? ये उनके कहने से पहले की बात है, ये पहले बात हुई थी जब सबसे राय ले रहे थे ना, अपनी अपनी राय सारे दे रहे थे, तो उस वक्त मैंने और राजा साहब ने इसका कहा था, बाकी ना कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हामी भरी। ठीक है, यानी कि आप उस वक्त हिमायत कर रहे थे कारगिल ऑपरेशन की? नहीं, यानी उस वक्त, और फिर नवाज शरीफ साहब उनकी ये राय थी कि विड्रॉल होना चाहिए, मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब की ये राय थी कि इस पे विड्रॉल होना चाहिए। मुझे इतना लंबा जो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका मौक़िफ़ यही था कि विड्रॉल होना चाहिए। अभी उन्होंने बात करनी थी बाहर भी, यानी कि ये मीटिंग जो है ये बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई थी। अच्छा, हाँ ये बात सही है, और नहीं, लेकिन नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था कि विथड्रॉ होना चाहिए, ये मैंने भी नहीं कहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ किए बगैर, कोई फैसले के बगैर बर्खास्त हो गई मीटिंग, और मंडे को उन्होंने कहा था ये मीटिंग दोबारा होगी और फिर हम फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही बात हुई थी, मीटिंग बगैर किसी फैसला किए ये खत्म हो गई थी। बिल्कुल इनकंक्लूसिव वो मीटिंग खत्म हो गई। एंड मुशर्रफ साहब, देन इट केम एज अ सरप्राइज टू यू कि उन्होंने वहां चकलाला साहब को फोन करके कहा जब आप मरी में थे, जियाउद्दीन भट्ट साहब के हमरा, कि मैं जा रहा हूं अमेरिका। दैट्स राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। जियाउद्दीन भट्ट और मैं दोनों उस मीटिंग में थे, और हम तो मरी चले गए थे वीकेंड के लिए, और टेलीफोन आ रहा है कि जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूं, जबकि मंडे को मीटिंग सेट है डीसीसी की। बिल्कुल इट वाज अ सरप्राइज, इन्होंने खुद ने फैसला किया अमेरिका जाने का, और फिर ये भी वहां मुझे भी नहीं बताया कि मैं वहां जाकर विड्रॉल करूंगा। मेरे से पूछ रहे हैं विड्रॉ करना चाहिए या नहीं, मैंने कहा जी मैंने आपको बता दिया नहीं करना चाहिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप पॉलिटिकल खुद देख लें, प्रेशर आपके ऊपर कितना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये गवर्नमेंट डिसीजन है, आप लें, गवर्नमेंट डिसीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चले गए और विड्रॉल करके आ गए, और जैसे मैंने बताया 5 पोजीशन में हम थे, 5 पोजीशन में वहाँ ये मुझे खुशी है चौधरी साहब जो भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल इन्हें वो फैक्ट याद हैं। मैंने 1 घंटा ब्रीफिंग नक्शे पे दी है, और मैंने बताया कौन सी 5 पोजीशन में हम अंदर हैं और क्या हमारी डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं, उसका मैंने बताया था। और मैंने कहा था सिर्फ 1 पे जंग हुई है, 1 पे लड़ाई हुई है, 4 पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ है, और हम बैठे में आराम से वहाँ, तो हमें कौन सी तकलीफ है जी वहाँ, हम तो आराम से बैठे हैं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो उधर जाकर 5 पोजीशन से विड्रॉल के ऑर्डर मिल गए, हमें वापस आना पड़ गया। ठीक है, अच्छा तो लेकिन चौधरी साहब ये देखिए, मुशर्रफ साहब तो उस वक्त आर्मी चीफ थे, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, लेकिन आप तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, तो आपके इल्म में था कि नवाज शरीफ साहब अभी अमेरिका जा रहे हैं? उन्होंने काबीना में बात डिस्कस की कि भाई वहां से बड़ा प्रेशर और हम जा रहे हैं अमेरिका जाने का? तो बताया था उन्होंने कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन जाके क्या बात करूंगा, क्या बात होगी, इसका तो हमें इल्म नहीं था। तो आपको इस हवाले से कुछ नहीं पता था कि वहां क्या होना है? और जब ये यानी आपको हैरत हुई वो जो फैसला हुआ अमेरिका में, या जो भी बातचीत हुई जिसके नतीजे में विथड्रॉल हो गया, वो आपके लिए हैरत का बाइस थी या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे चौधरी साहब? हमारी न्यूज़ थी बस, एक खबर थी बस हमारे लिए। और आपके ख्याल में चौधरी साहब ये मैं एक सियासतदान की हैसियत से, एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक अच्छा फैसला था जो नवाज शरीफ साहब ने किया अमेरिका में जाके क्लिंटन के साथ? आप बात कर रहे हैं जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि हमने राजा साहब ने कहा था जी कि विड्रॉल ना करें। ठीक है, तो आपके ख्याल में वो एक अच्छा फैसला नहीं था जो नवाज शरीफ साहब ने किया?
फैसला अच्छा होने की तो आपको पता समझ आ जाना चाहिए। जाहिर है कि अब इसमें आप क्यों मेरा कराना चाहते हैं कि मैं कहूँ मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कारगिल जंग के बारे में। एक राय मुशर्रफ साहब ने ये दी कि हम मैदान में वो जंग जीते और सियासी महाज पर या मुज़ाकरात की टेबल पर हार गए। तो ऐसा आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट आप एग्री करते हैं मुशर्रफ साहब की? बस ये आखिरी सवाल इस हवाले से मेरा आपका मकसद का जवाब ये है कि मैं एग्री करता हूँ। क्या आप एग्री करते हैं इससे? और चौधरी साहब वो आखिरी में ऑन अ लाइटर नोट, ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुशर्रफ साहब चौधरी शुजा साहब दोनों साथ लाइन पे बड़े तारीखी। घुसपैठ को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान की ओर से तोप के गोले करगिल के जिला मुख्यालय में बने सेना के आयुध भंडार में गिरे। पूरा एम्यूनिशन डिपो जलकर खाक हो गया। करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से करगिल प्रशासन के शुरू में बने नए मुख्यालय पर तोप के गोले बरसे। पाकिस्तान की ओर से गोले बेहद सही जगह और सही समय पर गिर रहे थे। पता चला कि मशको से बटालिक के बीच फैले 120 किलोमीटर के दायरे में घुसपैठियों ने कई जगह अपने बंकर बना लिए हैं। द्रास, काशकर, बटालिक, मशको में 10 किलोमीटर तक घुस आए थे घुसपैठी। करगिल से उत्तर की ओर 80 किलोमीटर के क्षेत्र में आतंकियों ने ऊंची पहाड़ियों पर अड्डे बना लिए थे। उनके निशाने पर था यह हाईवे इसलिए क्योंकि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सामरिक महत्व की इस सड़क को बंद कर पाकिस्तान सर्दियों में लद्दाख को जाने वाली आपूर्ति रोक सकता था। द्रास और करगिल पर कब्जा करके उसे नियंत्रण रेखा खुलवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। चुग घाटी, बटालिक और तुर्तुक क्षेत्र की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। करगिल के पास मशको घाटी के नालों पर कब्जा करके वहां से ताजा घुसपैठ के लिए रास्ते बना सकता था, पर सबसे बड़ा मंसूबा था नियंत्रण रेखा को बदलने और शिमला समझौते को दफन कर कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने इरादों में सफल होता तो लेह श्रीनगर राजमार्ग पर स्ट्रेटजिक कब्जा जमाकर लेह को श्रीनगर से काट देता। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना फंस जाती, समूची नियंत्रण रेखा पर सवाल खड़े हो जाते। पाकिस्तान 1972 में भारत के हिस्से आए इलाके पर फिर काबिज हो जाता। कश्मीर घाटी में आतंकियों के हौसले बुलंद कर पाकिस्तान कश्मीर समस्या को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहम बना देता और इस घुसपैठ से वो सफलता मिलती जिसे वो 50 साल में 3 युद्ध लड़कर भी नहीं पा सका था। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो एक वाटरशेड के साथ साथ चलती है। वाटरशेड का मतलब जो कि एरिया सबसे ऊंचा और एक किस्म की पहाड़ियों की लाइन होती है जो सबसे ऊंची होती है। हिंदुस्तान की तरफ एरिया लोअर है, पाकिस्तान की तरफ भी एरिया लोअर है। तो जो भी ऊपर वाटरशेड के ऊपर आके बैठ जाता है उसके पास डोमिनेटिंग पोजीशन तो मिल ही गया। तो इसमें क्या किया था, पाकिस्तान ने जो अनऑक्यूपाइड एरियाज थे उनमें आके डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठ गए। तो एडवांटेज तो उनके पास था। बेहद ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की स्थिति इतनी अनुकूल थी कि 10 घुसपैठिए 1000 सैनिकों की टुकड़ी पर भारी पड़ रहे थे। और अगर ऐसे में उनके पास भारी तादाद में मशीन गन, हल्की तोपें, स्ट्रिंगर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन हो तो आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बढ़ गया था। ऐसे में जमीनी लड़ाई सैनिकों की बलि चढ़ाते जाने से ज्यादा कुछ साबित नहीं होती। लिहाजा दुश्मनों को उनकी ही मान में मार गिराने का एक ही तरीका था और वो थी एयर स्ट्राइक्स। लेकिन उसमें भी खतरा था, जवाबी कार्रवाई जंग के दायरे में आ सकती थी। 27 मई भारतीय हवाई हमले की रणनीति के लिए बेहद घातक बनकर आई।
पर इस तारीख से बड़ा सबक भी मिला। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने मिग 27 से उड़ान भरी, पर उनके मिग विमान को पहाड़ियों के ऊपर से चलाई गई स्ट्रिंगर मिसाइल ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इजेक्ट होकर पैराशूट के सहारे नीचे उतरे तो वो नियंत्रण रेखा के पार चले गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। भारतीय खेमे में खलबली मच गई, विमान गिराया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पता नहीं। खोजी उड़ान लेकर स्क्वाड्रन लीडर ए आहूजा निकली तो उनके मिग 21 विमान को भी पहाड़ियों की चोटी से चली स्ट्रिंगर मिसाइल ने नष्ट कर दिया। जहाँ की पहाड़ियाँ नहीं हैं वहाँ तो रूल है 3:1, 3 और 1, आपको 3 होने चाहिए ताकि तभी आप जीत सकते हो। पर जैसे आप पहाड़ियों में ऊपर जाते जाते हो और एल्टीट्यूड में बढ़ते जाते हो तो ये रेशो और बढ़ती जाती है। इस लड़ाई में जब मलिक साहब जो कि चीफ थे उस टाइम पोलैंड से वापस आए तो उन्होंने आते सारी प्रोग्रेस का जब चेक किया और दिया, उन्होंने फिर रेशो लगाई क्योंकि एल्टीट्यूड देखते हुए सब कुछ देखते हुए 15:1 कि आपको दुश्मन समझो अंदर 100 बैठा है तो आपके पास कम से कम 1500 बंदे होने चाहिए ताकि तभी आप सक्सेसफुल हो सकोगे। Before I answer this question, I would be remiss if I didn't make a final comment on Kargil. My personal view, a military victory was converted into a political defeat. That is what I want to say. That is my assessment. This is it, point 5353 in the Dras sector on India's side of the line of control. Captured by the Pakistan Army during the Kargil War in 1999, point 5353 is the highest military position in the region. It overlooks India's National Highway 1D, a crucial road link connecting the Kashmir Valley with Kargil. During the peak of the Kargil War, Indian forces tried many times to recapture this mountain peak, but they were unsuccessful. All they managed to do was recapture the surrounding peaks, including point 5240, and arm them heavily to try and negate any firing from the Pakistani position. Today, 10 years later, Pakistani troops have heavily fortified their military might on point 5353 and built a road nearby as a supply line to this valuable position. The Indian Army says their positions surrounding this Pakistani post are enough to tackle any threat. But with the Pakistani Army perched on the highest mountain peak in the region, their guns can easily target up to 25 kilometers of National Highway 1D at any time that they want. Until point 5353 is recaptured by the Indians, this threat from Pakistan will always remain. Royden D'Souza, News X. Former President of Pakistan, General Pervez Musharraf, thank you so much for giving NDTV some of your time this morning. My pleasure. I want to ask you first, you're always a welcome visitor to India, in spite of the fact that you're called an architect of Kargil. I want to start by asking you, do you have any regrets about Kargil now that you're such a welcome visitor in India? Do you expect me to ever say that yes, I regret it? If somebody was to ask the Indian Prime Minister, do you regret having divided Pakistan and made Bangladesh? Do you regret having come into Siachen? Would he say yes, we regret, we are very sorry? How do you expect that? I don't regret it.